Hello friends, welcome to the microprocessor lecture. In today's lecture, we will discuss about the addition of the two 8-bit numbers using the 8085. So in this chapter, we will discuss about the programming, कि how we write a program to add the two 8-bit numbers using the 8085 program. Okay, so we have to follow some algorithm. So we have to use some instructions to write the program which adds the two 8-bit numbers and store the sum as well as carry, if any, into the appropriate memory location, that means the destination. So in the arithmetic program, in the addition of the two 8-bit numbers, these 8-bit numbers, let us assume these 8-bit numbers are stored in some memory location. Okay, it is some memory location in which there is a two numbers. Let's assume there is a number A and there is a number B. So we have to add these number A and B, and there is a result which is sum and as well as some carry. Okay, so to store these number, first of all, to store these number into the microprocessor. Okay, to add these 8-bit numbers, we have to use some arithmetic instruction, that is add, or if there is available any carry available from the previous program, if there is any carry which is needed to add in these two numbers, so there is ADC, add with carry. So add instruction add the two 8-bit numbers without any carry of previous carry, and ADC is the instruction which adds the two contents to to binary numbers with some previous carry and generate some new sum and the carry. So we have to store these sum and these carry into the new memory locations. So start the algorithm. In this algorithm, we have to first load the first number into the accumulator, because we don't have any instruction if we don't use any indexing procedure of the programming. It is a programming technique. अगर हम इंडेक्सिंग को यूज़ नहीं करते हैं तो हम अपने किसी भी एक रजिस्टर में मेमोरी का डेटा मूव नहीं करवा सकते हैं. अगर हम डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज़ करते हैं, दैट मीन्स किसी एक मेमोरी के कंटेंट को अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर रजिस्टर में सेंड करना है, लाइक बी सी एंड डी में, एक्यूमुलेटर को छोड़ के अगर हमें किसी बी सी डी रजिस्टर में डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के थ्रू हम कोई भी डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड दैट मीन्स आपकी एक मेमोरी लोकेशन का आपको एक पर्टिकुलर एड्रेस गिवन होता है. ओके, इसके लिए हम अपनी इंडेक्सिंग टेक्निक यूज़ करते हैं, जिसके लिए हम HL पेयर के थ्रू अपने इस पर्टिकुलर मेमोरी पॉइंटर को स्पेसिफाई कर देते हैं. HL हमारा क्या बनेगा, एक मेमोरी पॉइंटर बनाएगा, और हम इंस्ट्रक्शन कोई भी मेमोरी रिलेटेड इंस्ट्रक्शन जो होती हैं उनका यूज़ करके हम किसी भी एक जनरल पर्पस रजिस्टर में बी सी डी ई HL में अपने कंटेंट को मूव करवा सकते हैं. सॉरी, HL में मूव नहीं कराएंगे क्योंकि इट प्रोवाइड्स द सोर्स एड्रेस ऑफ द पॉइंटर. ओके, सो अगर इस प्रोग्राम में हमें अपने डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज़ करना है, सो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के लिए हम इसमें डायरेक्ट एड्रेसिंग की एक इंस्ट्रक्शन लगाएंगे, दैट इज LDA. ओके, एंड देन यहाँ पे 16 बिट का आपका एड्रेस आएगा. सो जो फर्स्ट नंबर होगा आपका, मैंने बताया आपको सम जो करना है वो दो नंबर का करना है, दैट इज A + B. यहाँ पे A और B मैं एक नंबर्स ले रहा हूँ, ये कोई रजिस्टर नहीं है. सपोज करो हम X और Y को ऐड कर रहे हैं. सो X एंड Y. सो X का जो मेमोरी एड्रेस है वो आपके कहाँ पे है, आपके 16 बिट एड्रेस पे है. उसको सबसे पहले हम कहाँ ले गए, एक्यूमुलेटर के अंदर लेके गए. ओके, सो इन द फर्स्ट स्टेप वी हैव टू मूव द फर्स्ट आपका बाइनरी नंबर इनटू द accumulator using the LDA instruction, load accumulator direct. Now क्योंकि हम B रजिस्टर में डायरेक्ट उस डेटा को नहीं लेके जा सकते यूजिंग द
इंस्ट्रक्शन। सो हम क्या करेंगे, जो एक्यूमुलेटर में हमने डेटा को मूव करवा दिया है इन द फर्स्ट स्टेप, उसको हम बी में मूव करवा देंगे यूजिंग द इंस्ट्रक्शन मूव। ओके, मूव बी कॉमा ए, द डेटा ऑफ द ए विल मूव इनटू द बी। ओके, एंड वी अगेन load the next binary number into the accumulator using the step 1. Okay, get the second data into the accumulator by using the same LDA instruction. Now we will use the instruction add the two register contents. मैं आपको बता दूं, जितनी भी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए इंस्ट्रक्शंस यूज की जाती हैं वो आपकी एक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती हैं कि उसमें जो ऑपरेशन होगा वो केवल 2 डेटा के ऊपर होगा और उसमें से एक डेटा आपका हमेशा एक्यूमुलेटर में होना चाहिए। सो बाय यूजिंग द स्टेप 3 वी हैव ऑलरेडी हैव सम बाइनरी डेटा इनटू द accumulator. Okay, and the second data we have using the B register. So we now in the fourth step we add the content of the accumulator with the B register, and to accomplish this process we have to use the instruction add B. That means the content of the B register will add automatically to the accumulator. Okay, so there is a condition after this instruction. There is a condition if there is a generate of the carry or not. That means our sum, मैंने बताया था आपको जब भी हम किसी दो डाटा को जोड़ते हैं तो हमारे पास दो चीज़ आती हैं, एक सम और एक कैरी। तो हमें ये डिपेंड करना होता है कि जो हमारा सम है वो आपका 8 बिट कंटेंट है या फिर 8 बिट से ज़्यादा का कंटेंट है। ओके, अगर 8 बिट से ज़्यादा का कंटेंट आता है तो हमारा सम तो होगा ही होगा, साथ में हमारा कैरी भी जनरेट होगा और ये आपका स्टोर होता है एक फ्लैग के अंदर एंड दैट इज कॉल्ड द कैरी फ्लैग. सो वी विल हैव टू चेक द कैरी फ्लैग यूजिंग सम इंस्ट्रक्शंस. ओके, सो यहाँ पे हमने कैरी फ्लैग को चेक करने के लिए जंप की इंस्ट्रक्शंस यूज करते हैं, जंप इफ कैरी एंड जंप इफ नो कैरी. ये दो इंस्ट्रक्शन जो होती हैं आपकी, जंप इफ कैरी एंड जंप इफ नो कैरी, ये आपकी ब्रांच कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होती हैं. इट्स अ कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शंस. ये आपकी ट्रू होगी तभी जंप करेगा. ओके, कोई भी आपकी कंडीशन जब ट्रू होती है वो तभी जंप करेगा और अगर फॉल्स हो जाती है तो वो जंप नहीं करेगा आपके फ्रॉम द वन इंस्ट्रक्शन टू अनदर इंस्ट्रक्शन. यहाँ पे आपकी ट्रू होने की कंडीशन क्या है? ऑब्वियस बात है, ये लिख रहा है जंप इफ कैरी, यानी कि अगर कैरी फ्लैग आपका 1 है तो आपकी ये कंडीशन ट्रू होगी, तब यहाँ पे जंप ऑपरेशन होगा. अगर यहाँ पे आपका कैरी फ्लैग 0 होता है सेकंड इंस्ट्रक्शन में, जंप इफ नो कैरी, आपकी ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी. जो कैरी फ्लैग है वो आपका 0 है, दैट मीन्स कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ है, तो आपका जंप हो सकता है. ओके, तो हम इन दोनों इंस्ट्रक्शंस में से कोई भी एक इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं. ठीक है, सो अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स द प्रोग्राम. एल्गोरिथम में इतना ही है. और अगर हमें कैरी आता है तो हम कैरी के लिए एक सेपरेट रजिस्टर यूज करते हैं, जो कि किसी को भी हम बना सकते हैं. एक्यूमुलेटर और बी को हमने एल्गोरिथम में यूज कर चुके हैं, इसलिए हम सी रजिस्टर में कैरी के लिए स्टोर कर देते हैं उसको. एंड हम उसमें सम को और कैरी को फिर सेपरेट अगर अलग अलग लोकेशंस पे स्टोर कर देते हैं यूजिंग द STA इंस्ट्रक्शंस. ओके, सो यहाँ पे आपको प्रोग्राम दिखाया गया है. फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज MVIC, 00 in which we initialize the C register 00 content. That means it used to store the carry. Okay, so we have to need to clear the register before the use. Okay, अगर हम इसको इंक्रीमेंट कराते हैं तो इसमें पहले से अगर कोई कंटेंट पड़ा हुआ होगा, सपोज करो 04, तो वो हम कैरी अगर जनरेट हो गया है और उसमें हम सी रजिस्टर में ऐड कराते हैं तो वो नाउ द न्यू कंटेंट इज 05. सो दैट इज नॉट द एक्चुअल रिजल्ट. एक्चुअल में कैरी कितना जनरेट होता है आपका 01. सो आपके सी रजिस्टर में 01 लाने के लिए पहले उसको क्लियर करना होता है. सो इसलिए हमने यहाँ पे यूज करा है MVIC, 00. दैट मीन्स वी हैव टू क्लियर द सी रजिस्टर. नाउ in the second instruction LDA 4150, this 4150 is the memory address of the source data 1. Okay, and the 4151 is the data 2, location of the data 2. So using the LDA instruction, the content of the 4150 location will move into the accumulator, and now we have to move the content of the accumulator into the B register using the move B, A instruction. Okay, now we have to load the accumulator with the second data.
which is hold at the 4151 location. So in the fourth instruction LDA 4151, it loads the value to the accumulator again. Okay, now we will use the instruction add B. Now this instruction adds the content of the accumulator to the B register, and the sum of the addition is holds into the accumulator itself. ओके ना, इसका मतलब जो आपके एक्यूमुलेटर में पहले डेटा 2 पड़ा हुआ था वो आपके डेटा 1 के साथ में यानी कि कंटेंट ऑफ द बी रजिस्टर के साथ में ऐड हुआ और उसका जो सम आया वो आपके एक्यूमुलेटर में ही स्टोर हो गया. दैट मीन्स द एक्यूमुलेटर होल्ड्स द रिजल्ट्स आफ्टर द अरिथमेटिक एंड बाइनरी लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस. Okay, now we have to check the condition there is carry or not. So we have used here the instruction jump if no carry. Okay, in which we use the jump if no carry. That means अगर carry हमारे पास नहीं आया, there is jump carry नहीं आया, then we will move to the label loop. और लूप पे क्या है, सीधे हम उस प्रोग्राम को स्टोर करा देंगे, यानी कि हम जो सी के कंटेंट यानी कि कैरी को स्टोर कराएंगे वो 0 0 होगा. और अगर आपका कैरी हो जाता है, ये इंस्ट्रक्शन आपकी फॉल्स हो जाएगी, वो इस लूप पर जंप नहीं करेगा तो इससे अगले इंस्ट्रक्शन को वो एग्जीक्यूट करेगा. दैट मीन्स INR C, यानी कि अगर कैरी आता है तो ये जंप इफ नो कैरी वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो अगले इंस्ट्रक्शन को ट्रू मान लेगा. दैट मीन्स INR C, यानी कि वो अगले इंस्ट्रक्शन पे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाएगा. INR C पे वो चला जाएगा, यानी कि जो C के कंटेंट आपके 0 थे वो +1 होकर के 1 हो जाएगा. ओके, और फिर हम उसको स्टोर करा देंगे एट द लोकेशन 4152 एंड 4153. यहाँ पर आपका स्टोर कराने के लिए हमने दोबारा से डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज़ करा है, यानी कि आप डायरेक्ट एक्यूमुलेटर कंटेंट को मूव करवा सकते हैं टुवर्ड्स द मेमोरी डेस्टिनेशन. सो सबसे पहले हम सम को स्टोर कराते हैं. सो वी स्टोर द कंटेंट ऑफ द accumulator to the 4152 location using the instruction STA 4152, and now we will store the carry into the memory location of the 4153. So first of all we have to move the carry which is into the C register into the accumulator. So we will use the instruction move A, C. After that we store the content of the accumulator, that means the carry, into the 4153 location, and then we alt the program. Okay, so let's take the example. Let we assume that the 4150 content has the 80 and the 4251 instruction has the 80. Both are same. Then if we add the, it is 80, that means the remaining parts of the is 0. Okay, there is only 1 and then 70. Again there is 1 and then 70. If we add these contents, the all the 8 bits of the sum represents the 0 0 0, because all the 0 plus 0 is 0 and the 1 plus 1 is 1 0 1 0. That means there is a 0 and the 1 is carry. Okay, so the sum is 0 0 and the carry is 1. So the result is, output result is, the 4152 location has the 0 0 and 4153 location has the 0 1. Okay, so thank you for the viewing lecture. Thank you all.